5 پلیئرز ساؤتھ افریقہ سے ہیں, 2 پلیئرز ویسٹ انڈیز سے ہیں, 3 پلیئرز آسٹریلیا سے ہیں اور 1 پلیئر ایچ سری لنکا, بنگلہ دیش, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے. آئی سی سی چیمپئن سے اگلے ماہ لاہور میں ٹکرائے گی. ورلڈ 11 کی دستک نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھول دیے. پانی زندگی, لیکن 6 کروڑ سے زائد پاکستانی زہریلا پانی پینے پر مجبور. اقوام متحدہ کی رپورٹ نے پاکستانی دریاؤں اور زمینی پانی میں آرسینک زہر کی مقدار خطرناک قرار دے دی. اور کہاں ہے ایشیا کا سب سے صاف گاؤں؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. اگلے ماہ ورلڈ 11 کی ٹیم پاکستان آئے گی. فاف ڈو پلیسیس کپتانی کریں گے اس 14 رکنی اسکواڈ کی, جس میں ہاشم آملہ, سیموئل بدری, پال کالنگ ووڈ اور تمیم اقبال بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. اس پیش رفت کا خیر مقدم نہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کیا ہے بلکہ DGISPR نے بھی ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے. ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ کی پاکستان واپسی کی امیدیں بن رہی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے. لیکن یہ میچز صرف لاہور میں ہی کیوں کھیلے جائیں گے اور سیکیورٹی اور فیسوں کی وجہ سے ہمیں کیا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ بعض ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنی زیادہ آبادی کی زہر خوانی اس سے پہلے نہ دیکھی گئی ہے. 6 کروڑ سے زائد پاکستانی ایسا پانی پی رہے ہیں جس میں خطرناک حد تک آرسینک نامی زہر موجود ہے. یہ زہر ہمارے پانی میں اتنی مقدار میں کیوں موجود ہے, کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے, جانیں گے پروگرام میں. اس کے علاوہ شامل ہے اپنی شعبوں میں کامیابیاں حاصل کرنے والی خواتین کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے. آج ایک منفرد کاروبار چلانے والی خاتون سدرا قاسم. شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے. ہم اس تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں PCB کے سربراہ نجم سیٹھی. نجم سیٹھی صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نجم صاحب, پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرنیشنل اسکواڈ ہے, ٹیم ہے ورلڈ 11 کی, اس کے نام تو اعلان کر دیے ہیں, لیکن پاکستانی سائٹ پر کون کون کھیلے گا اس کا فیصلہ, کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ محمد حفیظ اور وہاب ریاض نہیں ہوں گے. یہ آج اناؤنس ہو گیا ہے. انضمام الحق اور سلیکٹرز نے ٹیم سلیکٹ کر لی ہے. 16 لوگ ہیں اس میں, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انہوں نے وہاب کو نہیں سلیکٹ کیا اور حفیظ کو نہیں سلیکٹ کیا. انتظام چلے گئے ہیں حج کے لیے اناؤنس کر کے اپنی ٹیم. تو میری تو ایڈوائس ان سے یہی تھی کہ مہربانی کر کے آپ جب اناؤنس کریں تو اس کو ڈیفینڈ کریں اپنے سلیکشن کو, بیکاز میری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے. یہ پروفیشنل جاب ہے, پروفیشنل پیپل شوڈ ڈو اٹ. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں کہ فلانے کو انکلوڈ کیا اور فلانے کو انکلوڈ کیا, تو جیسے انضمام آتا ہے اس سے بات کر دیجیے. انضمام الحق سے ہی پوچھا جائے, آپ سے نہ پوچھا جائے. اچھا, اب یہ جو میچز ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ جب یہ PSL کا فائنل بھی ہوا تھا سیکنڈ ایڈیشن کا, آدھے شہر کو بند کر دیا تھا, اسی طرح کی سیکیورٹی ہم اس کی توقع رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, آدھے شہر کو بند کر دیا تو ایک میٹافر ہے. انفیکٹ آدھا شہر نہیں بند ہوا تھا, 2-3 سڑکیں بند ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیم کو ہوٹل سے اسٹیڈیم لانا ہوتا ہے تو اس وقت 2 یا 3 ڈیکوائز چلتے ہیں. تو وہ پھر 2-3 ڈیکوائز کا جو روٹ ہوتا ہے اس کو بلاک کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈیکوائے بسز اینڈ وینز اینڈ انٹوراج چل سکے. دیٹس پارٹ آف سیکورٹی ایز ویل. بٹ اس کے علاوہ ونس دی پلیئرز ریچ دی اسٹیڈیم یہ ساری کھل جاتی ہیں. اب مجھے یاد ہے کہ جب میچ ہونے والا تھا لاہور کا, تو میں اپنے گھر سے نکلا تو اباؤٹ ہاف این آور بفور دا میچ اسٹارٹڈ. مائی ہاؤس بڑا قریب ہے گدافی اسٹیڈیم. تو جیسے میں نکلا تو وہاں ٹریفک بند تھی, تو میں بھی پھنس گیا اس ٹریفک میں. انہوں نے کہا جی, تو میں نے پوچھا کب سے یہ بند ہے, تو انہوں نے کہا جی کوئی 15-20 منٹ ہو. مگر انٹرسٹنگ بات یہ تھی کیونکہ آگے مین روڈ تھا جہاں سے وہ ماؤنٹین راج نے جانا تھا جی, تو یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی انکنوینئنس ہوتی ہے. بٹ میں نے جو جذبہ دیکھا تھا لاہوریوں کا, سب
बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे, अपनी कोई मोटर बाइक पे बैठे हुए थे, कोई गाड़ियों में थे, कोई बाहर निकल के बातचीत कर रहे थे, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। इतनी ऑर्डरली तरीके के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। तो हमारी यही तवक्को है कि इस दफा भी उसी ऑर्डरली तरीके के साथ सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा और मिनिमल डिस्ट्रप्शन होगी। मिनिमम डिस्ट्रप्शन होगी। क्या यही वजह है कि लाहौर ही कदाफी स्टेडियम जो है यही वेन्यू रहा है, क्योंकि हुकूमत पंजाब आपको सिक्योरिटी फराहम करती है, लेकिन कराची भी है, इस्लामाबाद भी है, मुंतज़िर है इंटरनेशनल क्रिकेट के? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल कराची है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती है कि अभी तक कराची में हम मैच नहीं करवा सकते, मगर इससे मेरे हाथ बदले रहे। मसला ये है कि कराची की शहर की रेपुटेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी इतनी अच्छी नहीं, बिकॉज ऑफ व्हाट इज बीन हैपनिंग इन कराची। अब लोगों को नहीं पता, बहुत 100 मतलब अगर 100% खराब थी तो आज 90% ठीक हो गई है वहाँ की, और कराची से वेरी पीसफुल सिटी। मगर दुनिया को इस बात का एहसास नहीं। हमारा ये कोशिश थी कि लाहौर में एक ब्रिटिश प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ब्रिटिशर्स आर इन्वॉल्व सिक्योरिटी। ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस के रिटायर्ड अफसर हैं, इसलिए जब सिक्योरिटी कंपनीज बाहर से आके या उनके एक्सपर्ट्स आके देखते हैं लाहौर की सिक्योरिटी, तो उनकी ब्रीफिंग जो होती है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो करते हैं, हमारे पुलिस अफसर करते हैं, मगर उनके साथ गोरे भी होते हैं, तो बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है। अब हम लाहौर के मैच के बाद हम भेज रहे हैं अपनी टीम को, सिक्योरिटी की टीम को, जिसमें एक्स ISI के लोग हैं, तो वो कराची जाएंगे, वहाँ वो पूरा ये सिक्योरिटी प्लान लाहौर का लेके जाएंगे और इस प्लान की डुप्लीकेशन वहाँ करवाएंगे, ताकि हम PSL का कुछ मैचेस हम अगले फरवरी मार्च में हम कराची में करवा सकें। कराची में करवा सकें। स्टेडियम का हाल भी बहुत बुरा है, बिकॉज आज तक कभी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं हुई। अब हमने इस बजट पे आई हैव एलोकेटेड ओवर 1 बिलियन रुपीज, 1 अरब रुपए से ज्यादा एलोकेशन हुई है उसकी रेनोवेशन करने के लिए। छत लीक कर रही है, क्रैक्स आए हुए बिल्डिंग में, तो हमारी यही कोशिश है कि मार्च तक स्टेडियम बेहतर हो जाए ताकि हम PSL के 1-2 मैचेस वहाँ करवा। और इस्लामाबाद रावलपिंडी यहाँ कोई मैचेस, क्योंकि यहाँ भी लोग बहुत शौकीन हैं, और अगर आप ये भी कहा जाए कि यहाँ पे अपना सेफ सिक्योर सिटी प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से महफूज भी काफी। यहाँ जी मसला ये है कि पिंडी यहाँ के इस्लामाबाद में तो स्टेडियम नहीं है सच, मगर पिंडी में है स्टेडियम, मगर उसकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, लेस देन 50,000, वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी नहीं। मगर हमारी ये कोशिश है कि अगर ये रेस्टोरेशन क्रिकेट की होती है ऐसा ऐसा, और उसका ताल्लुक टेररिस्ट सिचुएशन के साथ है, जितनी जल्दी वो शुरू होती है और भी उतनी आसानी हो जाएगी। तो वैसे वैसे हम फंड स्पेंड करेंगे टू अपग्रेड आवर स्टेडियम, उनकी क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स बेहतर हो और वहाँ सीटिंग कैपेसिटी बढ़े, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मेरा अपना ख्याल है, इट्स अ 5-year प्रोजेक्ट। 5-year प्रोजेक्ट आपने कहा, लेकिन अगर कमिंग बैक टू दीज पर्टिकुलर मैचेस, वर्ल्ड 11 के जो मैचेस हैं, कि अब जब PSL का जो फाइनल हुआ था उससे पहले भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लाहौर में होते रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि NA 120 में भी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इससे कोई असर तो नहीं होगा? नहीं, देखिए सिक्योरिटी इस वक्त हम सारे शहर की तो नहीं प्रॉमिस कर रहे किसी को भी, वो हम कर भी नहीं सकते, ना ही पंजाब गवर्नमेंट वो कर सकती है। यहाँ जो सिक्योरिटी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेके होटल, होटल के अंदर, होटल के बाहर, होटल से लेके स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर, विद इन अ रेडियस ऑफ 3 माइल, ये 100% 100% गारंटी सिक्योरिटी। इसके अंदर पंजाब पुलिस, इसके अंदर पंजाब रेंजर्स, इसके अंदर इवन अ स्मॉल बटालियन ऑफ द आर्मी, they are in the SOP they work to create this safe space, so there is no threat to the players. अब तो डिफेंस में कुछ हो जाती है, कहीं रावी रोड पे कुछ हो जाता है, then nobody can rule out. मगर बात ये है कि the players are going to be safe, the audience is going to be safe, the stadium is going to be safe, the spectators are going to be safe. नजब साहब, अब PSL में भी हमने कुछ ऐसे नए खिलाड़ी उभरते देखे जिन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ भी खेला, उसमें फ़खर जमान, शादाब रियाज भी शामिल हैं। तो ये जो मैचेस हो रहे हैं अब, इसमें श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के भी मैचेस उनके साथ, तो नए खिलाड़ी को मज़ीद शामिल करेंगे इन टीम्स में। आपने इंज़माम का नाम लिया था, लेकिन कुछ आप भी अगर बता सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ आपकी भी है। नहीं, देखिए मेरा फलसफा बड़ा सीधा सा है। मेरा फलसफा ये है कि क्रिकेट की जो इश्यूज हैं वो क्रिकेटर्स को ही बेहतर समझ आती है। अगर मुझे आती भी है तो मुनासिब नहीं है मैं
एडमिनिस्ट्रेटर, अब इंतजाम में उनके साथी आगे सिलेक्ट होंगे। इट्स देयर जॉब टू गिव यू द टीम, इट्स देयर जॉब एंड इट्स द जॉब ऑफ देयर जॉब कि वो कोच के साथ बैठ के और कैप्टन के साथ बैठ के वो टीम बनाए। ये है रूल और ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होगा। मेरी मदाखलत इसमें नहीं होती। इसलिए अगेन एज आई सेड, ये क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन कि ये बंदा क्यों आ गया, इसको कोई नहीं कोई डाला, ये दिस इज अप टू द सिलेक्टर्स एंड द कोच एंड द कैप्टन। मगर आपने देखा अभी भी जो 16 नाम अनाउंस हुए, आपने खुद ही कहा उसमें से 2 सीनियर्स नहीं है इसके पास जी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर पहला मैच है दूसरे मैच में यंगस्टर्स परफॉर्म ना करें तो वो तो किसी स्टेज में भी सिलेक्टर्स जो है या कोच या कैप्टन मांग सकता है उनकी तरफ। मगर ये जो अभी 16 नाम अनाउंस हुए इसमें आपने देखा 3-4 यंगस्टर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है, जिनको मौका मिल रहा है। अच्छा, अब मुल्तान चैप्टर भी शुरू हो रहा है, मुल्तान की टीम भी बनी है, लेकिन हमने देखा है कि जो शहरों की, चाहे क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो, लाहौर कलंदर हो, शहरों की या सूबे से कम नुमाइंदगी होती है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर खराब होता तो आपको प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे, तो वो तो ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसमें जो सिफारिशें चलती हैं उसको कम करने की जरूरत है और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बेहतर करने की जरूरत है। बट डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर तो आपका बेसिक प्रोविजन वहीं से सारे प्लेयर्स आते हैं। अब हमने उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां की हैं, मिसाल के तौर पे जो है वो कम हो। मिसाल के तौर पे उसमें ड्राफ्ट सिस्टम हम लेके आए हैं। हमारा ख्याल है कि दिस ड्राफ्ट सिस्टम इज लिटिल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओल्ड सिस्टम। यहाँ एक रीजनल प्रेसिडेंट बैठ के सारा कुछ सिलेक्ट कर लेते थे, उनके ऊपर सियासी प्रेशर भी होता है और दूसरा कमर्शियल प्रेशर भी होता है। बट यहाँ प्रोफेशनल आ जाते हैं, कैप्टन आ जाता है, हमारी नेशनल सिलेक्टर्स आ जाते हैं, तो दे मेक श्योर के सिफारिश जो है वो कम से कम हो और मेरिट के ऊपर टीम बनाई जाए। तो दैट इज वाई आई थिंक थोड़ा सा हम तब्दीलियां कर रहे हैं इन द नेचर ऑफ हाउ द कॉम्पिटिशन आर बीइंग प्लेड, और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, अच्छा जा रहा है। PSL के साथ आप देखिएगा जो मेन इम्प्रूवमेंट्स हैं इन द स्पिरिट ऑफ द बॉयज, कॉम्पिटिशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारी PSL के जरिए मिलेगी, जहाँ ये दुनिया के सबसे टॉप प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी तो इसकी जरूरत पड़ गई। अब PSL में आपको दे दिए 2-3 लड़के, फिर आगे 2-3 साल में 2-3 और आपको देंगे, और विद इन द नेक्स्ट 5 years आप देखिएगा ये जो बिल्डिंग होल्डिंग्स हैं ये क्वाइटली मेल्ट अवे कर जाएंगे और न्यू क्रॉप ऑफ यंगस्टर्स मोटिवेटेड, डेयरिंग, रिस्क टेकिंग, शॉर्टर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम जो है बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। टेस्ट में तो हमारी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, मगर शॉर्ट फॉर्मेट्स में इतनी अच्छी नहीं, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट डजंट लेंड इटसेल्फ टू दैट। हमारी पिचेस जो है मोर और लेस डेड, गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, लॉन्ग इनिंग। जाहिर है जब मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो ज़्यादा आपके पास फंड्स आएंगे और उसके ज़रिए फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर कर सकते हैं। नजम साहब, उमर अकमल पर मेरा सवाल है अब कि उनका कहना है कि मिकी आर्थर ने तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की उनके ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा है कि कमेटी बननी चाहिए इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोब करने के लिए। या वो कमेटी बना दी है हमने, उनका खत आया जवाब में, हमने कमेटी बना दी है। वो उमर अकमल को भी पूछेंगे, मिकी आर्थर से भी बात करेंगे, इंतजाम से भी बात करेंगे, स्टार्ट से भी बात करेंगे, और जनरली जो बाकी हमारे कोचेज हैं उनसे भी बात करेंगे कि उमर अकमल का बिहेवियर कोई पैटर्न है नहीं है, एग्जैक्टली क्या हुआ, हु वाज एट फॉल्ट। तो ये सारी फाइंडिंग्स जब आएंगी इंशाल्लाह हम रिलीज कर देंगे। आई विल नॉट होल्ड बैक फॉर इट। यू वोंट होल्ड इट बैक सर। लेकिन आखिरी सवाल, इस दफा तो यही लग रहा है कि फटीचर खिलाड़ी और रेलू कट्टे नहीं आ रहे। नजर आ रहा है आपको इस दफा तो दुनिया पागल हो गई है देख के कि ये तो लुक्स लाइक द मोस्ट पावरफुल टीम इन द वर्ल्ड। मुझे तो फिक्र लगा हुआ है कि आई होप आप बॉयज आर अप टू इट। ये बहुत जबरदस्त किस्म की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है नजम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। पाँच से 6 करोड़ पाकिस्तानी जहर आलूद पानी से मुतासर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज की DG वाटर क्वालिटी लुबना बुखारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना साहिबा वक्त देने का। लुबना साहिबा,
तफसीलात बता सकती हैं जो तहकीक जो रिसर्च हुई है इसके बारे में, कहाँ कहाँ हुई, उससे क्या क्या मालूम हुआ? जी, ये WHO की रिपोर्ट है जो उन्होंने 1200 सैम्पल्स 1200 सैम्पल किए हैं सिंध और मशरकी पंजाब के इलाकों में, जिसकी रिपोर्ट दी है। लेकिन PCRWR 2002 से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और अब तक हमने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं वाटर क्वालिटी के ऊपर, जिनमें आर्सेनिक की मॉनिटरिंग भी हमने की है और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हम वाटर सैम्पल्स टेस्ट कर चुके हैं और हमें इस प्रॉब्लम का पता है कि ये प्रॉब्लम दिन ब दिन मशरकी पंजाब और सदरन पंजाब एज वेल एज सिंध में बढ़ रहा है। अच्छा, और सबसे पहले नाजरीन के लिए आर्सेनिक जो है एक जहर होता है, क्या होता है और अगर ज़्यादा मिक़दार में इसको इंजेस्ट किया जाए तो उसके क्या असरात होते हैं? जी, आर्सेनिक को उर्दू में संखिया कहते हैं और बहुत सारे पुराने लोग तो जानते हैं कि संखिया जहर को कहते हैं। आर्सेनिक का जो अकरेंस है या जो सोर्स है वो है सेडिमेंट्स या रॉक्स। वो दरियाओं की मिट्टी और दरियाओं के साथ बहता हुआ आता है। जैसे इंडस है, इंडस के साथ साथ जो इलाके हैं उनमें वो सदियों से बहता हुआ आ रहा है, तो अब वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और कुछ केमिकल्स की प्रोडक्शन, उसके दौरान भी आर्सेनिक इस्तेमाल होता है, तो वो भी हमारी ग्राउंड वाटर्स में जा रहा है। क्योंकि हम, आपको पता है कि हमारा ट्रीटमेंट है कोई नहीं, हर चीज़ को हम सरफेस वाटर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो वो सरफेस वाटर जो है इट्स कैरिंग आर्सेनिक। अब ये है कि अब ये जहर है और इसको इसकी ज़्यादा मिक़दार में अगर हम जी ये जहर है, लेकिन ये मिनरल है, इट्स अ मिनरल। और मिनरल जो है ये इट्स पार्ट ऑफ जियोलॉजी ऑफ द अर्थ, ये जियोलॉजी का हिस्सा है वो। अच्छा, और अगर ज़्यादा देर तक लोग इसको इस्तेमाल करते रहे, पीते रहें, तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब क्यों इसका मसला ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह ये, पहले क्यों नहीं था, ये तो सदियों से आ रहा है। बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। हम शैलो एक्वीफर से, शैलो एक्वीफर में ये होता है जो 10,000 साल से पुराना सेडिमेंट है उसमें ये नहीं है, जो 10,000 साल तक का सेडिमेंट है यानी यंग सेडिमेंट है उसमें है। तो वो जो शैलो है एक्वीफर, यानी कि ज़मीन जो अंडरग्राउंड वाटर या जिसको आप ज़ेरे ज़मीन पानी कहते हैं, उसकी जो ऊपरी तह है उसमें ये हो रहा है। अब जितना पानी निकाल रहे हैं वो गाढ़ा हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पानी निकल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके जो मिनरल्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की आबादी अभी सेंसस के रिजल्ट भी आए हैं, कोई तकरीबन 60% बढ़ गई है, पानी की ज़रूरत भी बढ़ गई है। इसकी वजह से ज़्यादा कुछ तो ये है कि ज़रूरत बढ़ गई है, कुछ हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो ओवर इरिगेशन करते हैं हम सरफेस वाटर से, जैसे नहरों से बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो खेतों में और अंडरग्राउंड ज़मीन में और ज़्यादा आर्सेनिक जा रहा है। और आर्सेनिक का ये है कि WHO की जो हद मिक़दार है वो है 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर या 10 ppb होता है पार्ट्स पर बिलियन। और पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने जो मुकर्रर की है वो है 50 ppb। वो हम अपना जियोलॉजी, अपना एनवायरनमेंट, हर मुल्क अपनी तय करता है। WHO गाइडलाइन देता है। गाइडलाइन का मतलब है कि 10 से नीचे जो है वो ठीक है, 10 से ऊपर मुकर्रर कर लेते हैं। तो हमारी है 50 ppb। तो 50 ppb के हिसाब से भी बाज़ इलाकों में ज़्यादा आया है। उससे ज़्यादा जब होगा तो फिर इसका मतलब है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होगा, ख़ासकर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स जो हैं, यानी कि लंबी मुद्दत तक जब आप उस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फेफड़ों, मसाने, दिल की बीमारियां, स्किन के लेजन्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि उन बाज़ इलाकों में देखी भी गई हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर आर्सेनिक ज़्यादा है। लेकिन ये है कि हमने इस सिलसिले में अभी तो शोर ये मच अच्छा, इसका जो अजाला है, इसका जो वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस। जी, रिवर्स ऑस्मोसिस अगर समझा सकती हैं क्या है? जी, रिवर्स ऑस्मोसिस से ये होता है कि आप पानी से सब कुछ निकाल लेते हैं, पहले एवरीथिंग जो मिनरल है सब निकाल लेते हैं, और फिर उसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी या ऐड कर देते हैं रॉ, या जो बॉटल वाटर कंपनीज हैं वो मिनरल्स ऐड कर देती हैं, तो वो बन जाता है। ये सब बॉटल वाटर कंपनीज जो हैं इसी तरीके से काम करती हैं, पहले सब कुछ निकाल के फिर जितना रिक्वायर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है इंटरनेशनल, उसके मुताबिक उसमें शामिल कर देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली
अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ कर रहे हैं तो रॉ वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते। मतलब ये कि कितना डालना चाहिए वो हमें समझ नहीं आता, या अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन रोकना चाह रहे हैं, जरासीमी आलूदगी, तो हम रॉ वाटर डालते हैं तो वो साफ़ हुआ पानी दोबारा आलूदा हो जाता है। कराची में ये मसले आ रहे हैं। अच्छा, 2002 से PCR WR जो है इस पे काम कर रहा है, आगाही कर रहा है, हुकूमतों को भी बता रहा है, कुछ नहीं हुआ, क्यों? नहीं, ये ना कहिए, क्योंकि जो हमारे पै दर पे हमें प्रोजेक्ट्स मिलते रहे वो इसलिए मिले हमें कि आगाही शुरू हो गई थी। आप ये देखिए कि पूरे मुल्क में पहले तो एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट भी आया था कि पूरे मुल्क में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगने हैं, वरना पहले कोई तस्वुर ही नहीं था फिल्ट्रेशन प्लांट का। अब ये है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी मुल्क में लग रहे हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो सब्जेक्ट है वाटर, ये चला गया है सूबों के पास। सूबे अपनी वाटर पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अभी तक उन्होंने बनाई नहीं, सम ऑफ देम हैव। ये मेरे ख्याल में उसकी बन गई है NWFP की, और ये बना रहे हैं बलूचिस्तान वाले भी बना रहे हैं अपनी वाटर पॉलिसी। दे आर इन कंसल्टेशन विद अस। तो अब ये है कि लेकिन अगर मसला इतना ज्यादा संगीन है मसला तो जो वाटर पॉलिसी बनाने में देर भी हो रही है, तो देर नहीं हो चुकी है, देर हो चुकी है, क्योंकि ये इशू जो है हाईलाइट ही अब बहुत ज़्यादा हुआ है कुछ सालों से, क्योंकि जो ही आबादी बढ़ी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इस्लामाबाद में अब देखिए कि पानी का कितना मसला आ रहा है कि पानी मौजूद ही नहीं है, और पानी के लिए कितना हम कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है अभी तक मेरे ख्याल में काम नहीं हुआ जिस तरह से होना नहीं चाहिए। सही कह रही हैं लुबना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक मुनफरिद कारोबार की को फाउंडर। वेलकम बैक टू द शो। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सिद्रा कासिम से, जो को फाउंडर हैं एक मुनफरिद ऑनलाइन बिजनेस की। मारखोर इसका नाम है। जूते बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किन चैलेंजेस का सामना किया है सिद्रा ने। इंटरव्यू कर रही हैं सदफ आबिद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिद्रा कासिम के साथ हैं, जो कि को फाउंडर है मारखोर की। मारखोर एक ऑनलाइन स्टोर है जिसमें जूते सेल किए जाते हैं। ये जूते पाकिस्तान में बनते हैं और अमेरिका और यूरोप में लोग इनको ख़रीदते हैं। ये मर्दों के जूते हैं। तो आए आज हम सुनते हैं सिद्रा से उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने ये काम शुरू किया। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। आपके पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स हैं, आपकी फैमिली में कभी किसी ने कारोबार नहीं किया, तो आई एम श्योर तवक्को यही होगी कि सिद्रा भी जो है वो अब टीचिंग करेगी। तो कैसे आपको ये आइडिया आया कि आप एक बिज़नेस की तरफ जाएंगी? थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम सदफ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जैसा आपने कहा कि तवक्को मुझसे यही थी कि मुझे भी टीचर बनना है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से था। लेकिन 2009 में मैंने पहली दफ़ा इंटरनेट इस्तेमाल किया और मैंने फेसबुक पहली दफ़ा तब किया जी। और 2010 में मैंने अपनी पहली कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था सोशल मीडिया आर्ट, और हमारे फैमिली फ्रेंड थे जो कि अब मेरे हस्बैंड हैं वकास, उनके साथ मिलके मैंने लॉन्च की। और उसका आइडिया ये था कि फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए आप नॉन प्रॉफिट या स्मॉल बिजनेसेस को किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं और क्लाइंट और कस्टमर वो आगे बढ़ सकें। हाँ। और फिर इसके बाद 2011 में जब मैं वापस उकाड़ा गई, तो वहाँ मैं मिली कुछ लोगों से जो हाथ से बहुत अच्छी क्वालिटी के लेदर के जूते बना रहे थे। एक छोटे से रूम में बैठे हुए 5 लोग। अच्छा। तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि कैसे पूरा जूता हाथ से बनाया जाता है। तो खैर मेरा इनिशियल आइडिया यही था कि हम फेसबुक के थ्रू इनके जूते बेचते हैं, लेकिन फिर इन्वेंट्री के ऊपर कुछ पैसे स्पेंड करने थे। तो हमने डिसाइड किया कि 25,000 वो डालते हैं, 25,000 मैं और 25,000 वकास डालते हैं। तो 2011 तक तो वो 25,000 अरेंज करके ले आए, लेकिन मैं और वकास कभी पैसे न ला सके। अच्छा, आपके पास इतने नहीं थे कि आप डाल इतने नहीं थे हमारे पास। और फिर 2012 में गूगल ने एक पाकिस्तान में ग्रांट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, पाशा सोशल इनोवेशन फंड के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो $10,000 की ग्रांट देंगे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को जो पाकिस्तान में ना सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं बल्कि उसकी वजह से सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है। तो ये आइडिया हमारे जहन में काफ़ी देर से था और हम इसके ऊपर काम करना चाह रहे थे और हमें अंदाज़ा था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो हम लोगों ने उसमें अप्लाई किया और लकीली 4 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया और उनमें से एक हम थे। एक्सीलेंट, दैट मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग। एग्जैक्टली। और उससे हमने लॉन्च किया और फिर 2012 में हमारी सिलेक्शन हुई प्लान 9 में, एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम है पाकिस्तान में। और फिर 2014 में हमने क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च की किकस्टार्टर पे,
और हमने 45 डेज में पाकिस्तान से बैठे हुए यूएस में 1,07,00,000 के जूते बेचे। वाओ, एक्सीलेंट, दैट इज अमेजिंग। और ये पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान में किसी स्टार्टअप ने इतना अमाउंट रेज किया। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद फिर 2015 में हम लोग हमारी कंपनी जो है वो पार्ट बनी वाई कॉम्बिनेटर का, विच इज़ एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन द यूएस, और उसका सिलेक्शन भी 1% है, और हम लोग पाकिस्तान से तब भी पहली कंपनी थे वहाँ तक। एक्सीलेंट। तो अब माशाल्लाह बिजनेस इट्स ग्रोइंग वेल। अब हम स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं। एक हमारा ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में है, एक हमारा पाकिस्तान में है। हमारी डिज़ाइन और ऑपरेशन टीम पाकिस्तान में होती है। एक्सीलेंट। और ये हमारे मुल्क के लिए कितने फ़ख्र की बात है कि ये काम सारा कुछ पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है और आगे जा रहा है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये बताएं सिद्रा कि हम सबको पता है कि एक स्टार्टअप और एक बिज़नेस की लाइफ जो है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं एंड यू फील कि येस थिंग्स आर हैपनिंग, आई कैन डू दिस, बट ऐसे भी दिन आते हैं जहां आपको लगता है कि पता नहीं ये आगे जाएगा, हम फंडिंग रेज कर सकेंगे, हमारी टीम बन सकेगी। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप पे भी ऐसा कभी वक्त आया और हाउ डिड यू मैनेज? जी, बिज़नेस के तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते रहे, लेकिन मैं कभी उन फेलियर से या उन चैलेंजेस से कभी नहीं घबराई। अच्छा। बल्कि जहाँ चैलेंज आता है मैं और मेहनत से काम करती हूँ। Really? लेकिन एक पर्सनल चैलेंज था फैमिली की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उगाड़ा से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही थी कि उनकी बेटी क्या करना चाह रही है, बिजनेस वुमेन बनना चाह रही है, इसका क्या मतलब है। वो बहुत डरे हुए थे, कंफ्यूज थे कि ये होता भी क्या है, मतलब कैसे होएगा? हाँ, और मतलब उस वक्त तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप का। सो एक वक्त ऐसा आया कि पेरेंट्स ने बात करना छोड़ दी जब मैं लाहौर में थी। तो उस वक्त मैं सोचती होती थी कि यार मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। तो उस वक्त मैंने फिर जैकुलिन नोवोग्राड जो फाउंडर हैं Acumen की, हाँ। उनकी मैंने एक टेड टॉक सुनी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे यंगस्टर से मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, या हमारे पास पैसे नहीं हैं, या सोसाइटी क्या कहेगी। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अपने आप से एक सवाल पूछें कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग दैट थिंग, कि उसकी कॉस्ट क्या है जो आप काम नहीं करना चाहते। तो मैंने ये सोचा कि आज अगर मैं ये काम छोड़ देती हूँ तो मेरे पीछे मेरे 4 बहन भाई और वो भी ख्वाब देखना छोड़ देंगे, वो भी ऐसे काम नहीं करेंगे जिसके अंदर रिस्क है, जिसके अंदर चैलेंज है। तो दैट वाज माय मोटिवेशन। सो दैट रियली केप्ट यू गोइंग कि मुझे अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को इंस्पायर करना है। एंड आई एम श्योर आज आपको देख के उकाड़ा नहीं बल्कि उकाड़ा के अलावा भी जो लड़कियां हैं मुख्तलिफ छोटे इलाकों से बड़े इलाकों से इंस्पायर होती हैं, बिकॉज मारखोर का एक ग्लोबल नाम जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक फ़ख्र की बात है। ये बताएं सिद्रा कि एवरीवन नीड्स सम रोल मॉडल्स जो आपको इंस्पायर करें, एंकर करें, आपको मोटिवेट करें, तो आपका कौन रोल मॉडल है? मेरा रोल मॉडल शेरिल सैंडबर्ग हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फेसबुक में। और मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो सिर्फ ये बात नहीं करती कि विमेंस को बाहर आना चाहिए और काम करना चाहिए, बल्कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं कि विमेन को खुद से एफर्ट करनी चाहिए, और उनकी अपनी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। शेरिल सैंडबर्ग इज़ समवन जिनको मैं भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बल्कि उनकी किताब जो लीन इन है वो आई थिंक हमारे सारे ऑडियंस को पढ़नी चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत इंस्पिरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आप अपने लिए सर्कल्स क्रिएट करें, दायरे क्रिएट करें जो आपको सपोर्ट करें। और ये हमारा अदारा जो है सर्कल का भी यही फोकस है कि ख़वातीन आगे बढ़ें, हमारे मुल्क की प्रोग्रेस में शामिल हों। सिद्रा ये बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लड़कियों को, पाकिस्तानी ख़वातीन को, उनकी तरफ से आपके ख़्याल में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो आगे का सोचें? जी, हमारी कंपनी में मारखोर में हमारा इंटरनली कंपनी का मोटो ये है कि, और हम बिलीव करते हैं इस आइडिया पे कि पाकिस्तान को जो बंदा चेंज कर सकता है वो एक विमेन है। अच्छा। और आई विल मैसेज ऑल विमेन एंड गर्ल दैट डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। आप जितना पैशन से, डिटर्मिनेशन से बाहर आके काम करेंगी, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपको हर्डल्स अब फेस करनी पड़ रही है, वो सारी एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बट यू हैव टू शो अप। और हमारी आज की खातून को पहले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए भी और अगली जनरेशन के लिए। और मुझे ये बताएं कि 1-2 टिप्स आपकी क्या होंगी, जिस तरह आप कहती हैं प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। तो जब आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, देयर आर मेनी मोमेंट्स जब आपको नो सुनना पड़ता है, और इसी तरह लाइफ में भी काफ़ी दफ़ा हमें नो सुनना पड़ता है, चाहे हमारी अपनी फैमिली से हो या काम पे हो, और कभी हमें लगता है हमारी ड्रीम्स नहीं जा रही। तो क्या 1-2 चीज़ें आपने सीखी हैं जो आप टिप्स देना चाहेंगी? हाँ,
पहली चीज़ ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप पैशनेट हो। अगर आप पैशनेट होगे तो जितने भी फेलियर्स आएंगे, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, आप डिटर्मिन होकर खड़े रहो। तो वो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ के मुझे ये लगता है कि विमेन जो बाहर आती हैं, काम करती हैं, उनका सिर्फ यही मिशन नहीं है कि वो अपने लिए काम कर रही हैं, बल्कि वो एज अ पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। तो आई थिंक वो एक मोटिवेशन अपने दिमाग में हमेशा रखें। और तीसरी चीज़ आई थिंक रीड बुक्स। जितना कुछ आप बाकी विमेंस की या और बंदा जो आपकी तरह के सर्कमस्टांसिस में है उनकी लाइफ से सीख सकती हैं, आप कहीं से नहीं सीख सकती हैं। एंड बुक्स इज़ अ बिगेस्ट सोर्स। थैंक यू सिद्रा। आई होप कि आप सब भी बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, स्पेशली मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स जो ये प्रोग्राम देख रही हैं। गो फॉर योर ड्रीम्स। आप आगे बढ़ेंगी, आपका ख़ानदान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक औरत जब बढ़ती है तो वो अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करती है। स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। एंड आई होप कि जो पेरेंट्स हैं वो स्पेशली अपनी लड़कियों को सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें। थैंक यू सो मच। लेते हैं अब छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद दुनिया का सबसे साफ सुथरा गांव। वेलकम बैक टू द शो। गांव का नाम सुनते ही जहन में कच्चे मकानात और कूड़ा क्रिकेट का ख्याल आता है, लेकिन भारत का एक गांव ऐसा भी है जिसे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है। जनूबी एशिया के अक्सर देहात गंदगी और बदबू से भरपूर, जबकि बेशतर गांव टॉयलेट की सहूलत से भी महरूम हैं। लेकिन भारत में माओलिंगलांग गांव ऐसा है जो सफाई की एक आला मिसाल है। माओलिंगलांग गांव में बच्चा बड़ा हर कोई सफाई का खास ख्याल रखता है, और वहाँ कूड़ा करकट तो दूर, बदबू का भी तस्वर नहीं। भारतीय डिस्कोवर मैगजीन के एक सहाफ़ी ने माओलिंगलांग गांव को सबसे पहले 2003 में एशिया का साफ गांव करार दिया। इनकी दिलचस्पी इस बात से और बढ़ गई कि यहाँ हर शख्स सबसे पहले गली, बाग, दरख्त की सफाई को अपना अव्वलीन फरीज़ा समझता है, जिससे यहाँ का माहौल दिलकश और साफ सुथरा रहता है। माओलिंगलांग गांव की तारीफ सुनने के बाद मकामी सियाहों के अलावा दुनिया भर से लोग वहां आने लगे, और आज ये गांव अपनी सफाई की वजह से बेहद मकबूल हो रहा है। रोजाना सुबह शाम गांव की हर गली, बागात, रिहायशी मकामात और सयाही मकामात की सफाई की जाती है। अगर सयाह गांव में जरा सा भी कचरा फेंक देते हैं तो इसकी फौरी तौर पर सफाई की जाती है। नकासिया आप के लिए गुजरगाहों के करीब नालियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए पानी गांव से दूर जाता है। माओलिंगलांग गांव भारत का वो वाहिद गांव है जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर बैतुल खला मौजूद है। गांव में रात को रोशनी के लिए गलियों में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जबकि गांव में सिगरेट नोशी और प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी भी आयद है। पाकिस्तान का सबसे साफ सुथरा गांव कौन सा होगा? हमें बताने के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हो गया है और उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले, हाथ से पेंटिंग्स बनाते तो हमने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन ज़बान से पेंटिंग्स बनाना कैसे होता है देखिए आज की दिलचस्प वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।